talking to all of them. Everything was going good until the end of the day. जब हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमको एक ग्रुप एक्टिविटी दिया, व्हाट दे डिड, उन्होंने ग्रुप में सारे लोगों को 2 और 3 लोगों की टीम में डिवाइड कर दिया और फिर उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, उनको एक प्रॉब्लम दिया कि आप सब लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है और उसका प्रेजेंटेशन ही देना है. वेल, हम लोग सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे सकते हैं एक्सेप्ट वन, स्टैमरिंग. तो ठीक है, तो मैं बहुत खुश था. ठीक है, आई विल गो. एंड मैं गया अपनी टीम के साथ में, मैंने काम किया. मेरी टीम कहाँ पर है? आदित्य, राहुल, नवीन, हाँ, जोशुआ. तो मैंने अपनी टीम के साथ में काम किया और काम करके बढ़िया सा मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया. एंड आई वाज वे टू हैप्पी. लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था. तो देखते हैं एक्चुअली उस सीन में क्या हुआ था. कैन आई हैव ऑन स्टेज पीपल फ्रॉम बैंगलोर SLG? सो आई विल इंट्रोड्यूस. राहुल will be playing me. Rahul will be playing person who stutter. Naveen, he will be playing his team member along with Aditya. Aditya will also be playing his team member, and Joshua will be playing the role of instructor. So, over to you, Joshua. Ladies and gentlemen, boys and girls, swans and peacocks, please join me in welcoming Team Bangalore from Bangalore for MC Delhi. Please. Good afternoon, guys. We have done our presentation, and my colleague Rahul will be presenting the presentation. No, but you are supposed to give. Yeah, Rahul, you have done the presentation, right? So you will be better. You will be able to explain it to the people better than me, as you have done the presentation. So you please take the lead, Rahul. Hi, everyone. My name is Rahul, and It is okay, Rahul. I will continue with the presentation. So the presentation goes as. So once the presentation is done, I go up to Rahul and ask, और भाई कैसे हो? मूड सही नहीं है, लग रहा तुम्हारा क्या हुआ? प्रेजेंटेशन के टाइम क्या हो गया? तो क्या स्लाइड समझ में नहीं आ रहे बेटे? या मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे? नर्वस क्यों हो गए? अपने दोस्त की तो भाई, दोस्तों के सामने तो दे रहे, इतना डर क्यों गए? तुम्हें तो पता है. नहीं, क्या नहीं पता. तो यहाँ पर आपने देखा कि a person who stutters, he went on stage unprepared. And what happened next? People were making assumptions. His teammate, you saw him, कि उसका teammate trying to help him, he went on stage to fill in for him. वो स्टेज पे इसलिए गया ताकि वो अपने दोस्त की मदद कर सके. पर क्या हुआ एक्चुअली में? उसकी हेल्प की उसने वहां पर. I want to ask you guys, first tell me what Rahul did good here. राहुल ने यहाँ पर क्या अच्छा किया? He went back on to the stage. बहुत बढ़िया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राहुल क्या अच्छा कर सकता था? पीछे से वो बताना चाहेगा? या पीछे से वो बताना चाहेगा? राहुल क्या अच्छा कर सकता था? राहुल उसको मना करता Okay, very good. Next question.
उसके टीममेट ने क्या अच्छा किया, जो उसका टीम मेंबर था उसने क्या अच्छा किया? कुछ अच्छा नहीं किया। ओके, वेरी गुड। उसका टीम में क्या अच्छा कर सकता था? वो खुद ही प्रेजेंटेशन दे सकता। ओके, ठीक है, वो राहुल को थोड़ा और टाइम दे सकता था। ठीक है, हम सब लोग सारे assumptions में हैं अभी। ओके, अब हम देखते हैं वापस उसी सीन के अंदर कि क्या एक आइडियल वे हो सकता था उस सिचुएशन से डील करने का। तो आई विल अगेन लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज द सेम टीम टू रीएनैक्ट द सीन इन द आइडियल वे। जोशुआ, would you like to call upon me? Ladies and gentlemen, boys and girls, swans and peacocks, and all the birds included, please join me in welcoming Team Bangalore from Bangalore for NC Delhi. Give them a hand, please. Good afternoon, guys. Good evening. Our team, we have done with our presentation, and my colleague Rahul will be taking the lead to do the presentation. You have prepared the presentation, Rahul, so it would be better if you proceed with the presentation. Hi everyone, my name is Rahul. And I will be presenting you my solution today. Now, in between, I might stammer, but you guys please feel free to interrupt me and ask me anything which you do not understand. Rahul, Yeah, are you comfortable talking, or shall I do the presentation? Yeah, Naveen. On behalf of our team. no, Naveen. Thanks for your help, but I would like to carry on. थैंक यू नवीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे राहुल ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड। उसको पता नहीं था कि स्टेज पे उसको भेजने वाले हैं। द मोमेंट ही वेंट देयर, ये शायद उसकी टूल किट उसने पहले से रेडी करके रखी थी कि अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे क्या करना है, छुपाऊं कि बताऊं। एंड दिस टाइम ही चोज कि आई वुड डिस्क्लोज very with all the pride. I would disclose and I will also educate people on what they should do. उसने लोगों को बोला कि भाई देखो, I sometimes stutter, मैं कभी कभी हकलाता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ पेशेंटली डील करोगे तो, और अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कृपया मुझे रोक करके आप पूछ लें। तो उसने लोगों को एजुकेट कर दिया और उसने अपना स्ट्रगल भी खत्म कर दिया। उसके बाद जब उसके फ्रेंड ने पिचन किया हेल्प करने के लिए, तब भी राहुल ने कंट्रोल अपने हाथ से नहीं छोड़ा। ही वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई नो आई विल स्टटर, आई कैन नॉट चेंज दिस एट दिस वेरी मोमेंट, बट हाँ, ही बिलीव दैट आई एम अ गुड कम्युनिकेटर डिस्पाइट बीइंग डिसफ्लुएंट। हकलाने के बावजूद भी मैं लोगों को अपनी बात बता सकता हूं। Communication is not fluency. This is what he believed in, and rest you saw. This is a real example which I had 3 months back. Now there are even far more experienced people in Bangalore SHG whom I would like to call upon stage to share experience and do's and don'ts from their workplace experience. So let me call upon stage Aditya, Rahul, Naveen to share their experience.
वन बाय वन। हाँ सर, अभी जो आपके साथ हुआ था 2 महीने पहले, एक्सपीरियंस वो कौन सा वाला सीन था, पहला या फिर दूसरा वाला? पहले वाला। मैं अगला गया, मैं नहीं बोल पाया, मैं चुप हो गया, लोगों ने assumptions किए, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। और मुझे शर्म नहीं है इस बात के लिए, आप लोगों के सामने भी ऐसे मौके आएंगे जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, बट हाँ उसने मुझे रेडी कर दिया कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है। यार मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, हाँ तो मैं फेल हो गया भाई, इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म थोड़ी है, हम सब फेल होते हैं, मैं फेल हो गया। प्रिपेयर करता है, इसने मुझे प्रिपेयर कर दिया अब नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट शॉट नेक्स्ट टाइम। नॉट श्योर सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बट हाँ दिस इज व्हाट आई शुड डू। ओवर टू यू। सो अभी क्या है कि हमने कहा कि इंटरव्यू जॉब, अब एक बार है कि हम ऑफिस में हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उस पर कैसे डील करें, तो बहुत सारी हैं, घर पे तो बात नहीं कर सकते, बट मेरी बात आपसे पूरी तरीके से सही तरीके से पहुंच पाए तो आई पिक वन यूज केस, वो है कि हमें टीम में प्रेजेंटेशन देनी है। तो जब टीम में जब हमें पता चलता है कि प्रेजेंटेशन देनी है तो हम सबको लगता है, डर लगता है, सबको लगता है ना, तो वो डर आप ये बताइए कि जैसे अगर 6 बार प्रेजेंटेशन है तो हर बार लगता है डर, ऐसा तो है नहीं 1 बार लगा 2 बार लगा, अगर 6 बार हमें प्रेजेंटेशन के मौके आए तो हर 6 बार वो लगता है डर। बट वो डर है तो क्या ऐसा है कि पहली बार जब प्रेजेंटेशन थी तो हमको डर था कि भाई अर्थक्वेक आ जाएगा क्या, सेकंड टाइम ये डर था कि सुनामी आ सकती है क्या, थर्ड टाइम ये डर था कि मतलब वोल्केनो फट सकता है क्या, फोर्थ टाइम ये था चाकू ठोक सकता है। हर बार जो डर था वो सेम था कि भाई हम स्टैमर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सा लाइफ का प्रिंसिपल है कि अगर प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है कि हमें प्रेजेंटेशन देनी है और स्टैमर करेंगे, तो हम उसके लिए एक सोल्यूशन क्यों नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि हम उसको बहुत इमोशनली करते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन है, उससे पहले एंशियस होना है, प्रेजेंटेशन है उससे पहले हमें ये उम्मीद करनी है कि काश भाई स्टैमरिंग ना हो, मैं बहुत हार्ड बोल रहा हूँ, वो उम्मीद करनी है तो करनी है। जब प्रेजेंटेशन हुई उसमें स्टैमरिंग होनी है तो होनी है, दिल टूटना है कि तो टूटना है कि मैंने उम्मीद करी थी यार फिर से बताओ, फिर से हो गई स्टैमरिंग, फिर उसके बाद अफसोस है, थोड़े दिन आपका मूड खराब होगा और फिर सब कुछ सही, और वो साइकिल फिर से चलती जा रही है। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, हमको पता है कि उसमें जो होना है वो बस सिंपल सी बात है कि हमारी प्रेजेंटेशन है और उसमें स्टैमरिंग होनी है और हम कैसा महसूस करते हैं ये भी पता है, बट ये हम बैठ के सोचते नहीं कि हम उस पर क्या करें। तो मेन जो थॉट है वो ये है कि प्रिपेयर एंड रिपेयर, 2 ही चीजें हैं कि प्रेजेंटेशन के पहले प्रिपेयर क्या हो और प्रेजेंटेशन जब हो जाए तो अगर भाई कोई रिपेयर, इमोशनल रिपेयर की जरूरत है तो वो क्या हो। तो आपको, और ये जो स्टेप्स हैं प्रिपेयर एंड रिपेयर के, ये जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, प्रेजेंटेशन के 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले आप सोच ही नहीं सकते, ये आपको सोचना है जब आपका मन शांत है और आप फ्री हैं, खाली कोई टेंशन नहीं है, तब आप बैठ के सोचिए कि जब मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है तब उससे पहले मेरे मन में क्या चलता है, उसके बाद मेरे मन में क्या चलता है, वो सोच के एक अपनी टूल किट कहते हैं कि टूल किट बनाइए। अब आप सबके लिए अलग हो सकती है, आपके इमोशंस पे आपको कोई चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, कोई चीज़ कम कर सकती है, बट अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो जैसे मेरे साथ क्या था कि जब मुझे प्रेजेंटेशन देनी होती थी तो मैं उम्मीद करता था कि काश स्टैमरिंग ना हो, जो कि मेरे को पता है होगी, तो वो उम्मीद खत्म करना कि भाई हाँ होगी। फिर जैसे मेरे को ये लगता था कि अगर मैं भाई 100 घंटे प्रिपेयर कर लूँ तो शायद ना हो, तो मैं 100 घंटे, अब अगर मेरे को परसों पर प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं टीवी, खाना पीना, दोस्ती यारी, नींद, घर बार तो छोड़ के मेरे को मन है कि मैं प्रिपेयर कर लूँ, और जो हो नहीं पाया तो मन में अफसोस है कि मैं 100 घंटे प्रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहा। तो मेरे लिए सिंपल सा था कि भाई प्रेजेंटेशन के पहले आधे घंटे की प्रिपरेशन चाहिए, आधे घंटे की प्रिपरेशन करके मैं जितना डेली चिल करता हूँ उससे और ज़्यादा चिल करूँगा।
ये हो सकता है। फिर आपने जब प्रेजेंटेशन दी थी तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या फील करते हो, क्यों फील करते हो, तो आप पहले ही सोचो कि मैं उस समय जब खराब फील कर रहा हूँ तो व्हाट विल आई डू टू हेल्प माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल हो सकता है कि जैसे एक सिंपल है कि अगर आपको कोई भी हैबिट चेंज करनी है तो उसके लाइक आपको क्या करना है कि एक खुद को रिवॉर्ड देना कि अगर मैंने इसको सही तरीके से करा तो मैं अब अपने आप को ये खिलाऊंगा या ये गिफ्ट करूंगा या ऐसे समय अपना स्पेंड करूंगा। तो आप वैसे कर सकते हो, बट बेसिक पॉइंट है बैठ के सोचो। दो ही चीजें आपको सोचनी है कि भाई प्रिपेयर के टाइम क्या करना है, रिपेयर के टाइम क्या करना है। और सच बात यह है कि हम लोग बहुत बार बैठ के सोचते नहीं है, इमोशनली ड्रिवन बहुत ज्यादा होते हैं, डर, अफसोस, दुख, वो सब होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो मेरे साथ भी होता है, बट थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। I would take only 2 minutes. No, that you have raised the question. You know, when we stammering, then what will happen, like in front of manager. So I had a face same experience. So what is happen? Actually, I was thinking same way. What think about my manager? मेरे में क्या सोच रहा है? If I stammer, then what he? Actually, we are not working with manager. हम manager के लिए काम नहीं कर रहे. We are working with the customer. Customer who paying to your company. If you work hard and you do persistent your hard work, then customer always appreciate. In my cases में यही होता था, मैं कहता था कस्टमर कि मेरा मैनेजर क्या बोलेगा, always मेरी मतलब निकालता था कि ये प्रिपेयर नहीं किया, you are missing this thing, you are missing in the presentation. But finally I got appreciated with the customer. कस्टमर मुझे हर बार अप्रिशिएट करते हैं, डिफरेंट कस्टमर। एंड इफ कस्टमर जो जहाँ से पैसा दे रहा है वो अगर आपको अप्रिशिएट करता है, nobody can say anything। अगर आपको कंपनी का मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है, rather than thinking about stammering, I request to all think about how you can do best way। एंड जब मैंने भी यहाँ given lot of presentation in CPQ किया people, I was thinking कि मैं स्टेमर कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, nobody is thinking, वो देख रहे कि मैंने डेटा क्या डाला है, what you are presenting, doesn't matter कि आप स्टेमर कर रहे हो क्या कर रहे हो, वही देखता है कि तुमने, और वो मिस्टेक वही निकालता है, तुम्हें डेटा में तुमने ये मिस कर दिया है, वो लाइक टू गो डेट वे, ये रिपोर्ट निकाल के दो। nobody say anything कि आपने स्टेमर किया। मेच्योर लोग होते हैं वो कभी आपके स्टेमरिंग पे क्वेश्चन नहीं करेगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस। कोई भी सीईओ सीईओ के सामने तुम स्टेमर करो, वो आपके सामने एक वर्ड नहीं बोलेगा। आप डिस्क्लेमर दो, दिस इज गुड थिंग। अगर आप मैं भी हमेशा देता हूँ, जैसे मुझे सजेस्ट किया था डिपेंड नहीं कि व्हेनेवर यू गो यू फील अनकंफर्टेबल, यू गिव द डिस्क्लेमर कि अगर आप स्टेमर करते हैं, अलाउ सम टाइम आई कैन रिपीट। ये नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी सीटीओ सीईओ लोग नोबडी केयर कि तुम क्या कर रहे हो, वो चाहता है तुम्हारा काम तुमने कैसे किया। अगर वो आप कर दोगे डजंट मैटर। मैनेजर अगर आपके अगेंस्ट भी होगा वो कुछ नहीं कर सकता। अगेंस्ट क्योंकि आपकी कंपनी जहाँ से पैसा दे रही है, आ रही है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर रहेगा तो मेरे ख्याल से न तो कोई प्रमोशन आपका रुकेगा, नहीं कोई चीज़ें आपको हर्डल होंगी। Good evening, guys. So, how many of you from here are doing a business or planning to run a business in future? So me, once after I had completed my engineering, I jumped into my dad's business, and the first stage when I stepped in there, I thought that it would be a bit of process, wherein I need to speak. I can easily go sit in a chair for the entire day, assign some of the checks or something, and then come back in the evening, have a talk with a friend, enjoy the day, like that. I thought, but after going into the business or job, the plate actually turned the other way around, and I needed to talk with my clients, talk with my customers. So I was a serious stammerer back then. I couldn't pick a call and tell hello. It would take me 10 seconds, 20 seconds, even sometimes. And sometimes, by the fear of attending the phone, I would just cut the call. I would not talk with my customers or my clients. But what actually helped me
to overcome the fear of talking with phone, I will share with you guys. So after joining TISA and TUPG group led by Dr. Sachin, he had told to do some random calls by picking the numbers in the newspapers, talk with them for some 2 to 3 minutes, inquire about something. So every day I used to call so many people from the newspaper ads, and also I would talk with the people from the Telegram group also. So by gradually practicing and practicing, the fear of the phone call reduced in me gradually, and now I'm able to talk to any of my customers. I can, and also I'm able to talk with my clients. I'm able to bargain with them. At times I need to be tough. I change my plate and then I become tough and strict at some times, and at sometimes I become cool, calm. I talk with them. So basically the learnings are that if we to reduce the phone phobia, we need to talk with unknown people. You can just call the numbers from the newspaper and then talk with them, stammer, do voluntary stammering, and do anything, but just try to talk with some 3 to 4 people. By then the phone phobia will be reduced, and you too and we too can talk by phone with our clients or with our customers. Thank you guys. हाय एवरीवन, दोबारा ये नमस्कार। तो मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है ऑफ वन ऑफ माय रीसेंट वन-on-ones विद अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी। तो अब जैसे हम लोग का वन-on-one होता है, आपका भी होता होगा विद द मैनेजर्स, और वन-on-one से पहले हमारे अंदर खूब एंजाइटी होती है, राइट? यू वांट विद द मैनेजर आस्क अस, या फिर व्हाट विल द डायरेक्टर आस्क अस, विल आई बी एबल टू स्पीक, विल आई स्टैमर, इफ आई स्टैमर व्हाट विल ही से, विल ही नॉट कैंसिल द मीटिंग विद मी क्योंकि मैं हकला रहा हूँ, राइट? होता है कि नहीं होता है? बस इनको ही होता है क्या? सबको होता है? गुड। तो हाल ही में यूं ही हुआ था मेरे के साथ। तो मेरा मीटिंग था विद माय सीनियर डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी। तो ऐसे ही अब बात हो रही थी, और वन-on-ones में ऐसा होता है मोस्टली कि they want to know your personal goals and your professional ones. कि one, what will you do for yourself आज से 5 साल बाद, and what will you do for this कंपनी अगले 5 सालों में, राइट? तो ऐसा ही हो रहा था बात। तो मैंने उनसे ऐसे ही अब बोल दिया कि सर, मतलब नॉट सर, कि आई एक्चुअली समटाइम्स वरी कि बिकॉज मेरे को स्टैमरिंग है, तो शायद मैं अपने करियर में उतना ऊपर ना जा पाऊँ।
ये जेन्युइन वो है, कंसर्न है। और मैंने जब उनसे बोला, मैं बहुत सीरियस था, बहुत सीरियस, मैंने बोला एंड he started laughing. He was like, क्या राहुल तुम भी ना। He genuinely started laughing. और 2 मिनट के लिए मेरे को ऐसा लगा कि शायद उसको ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि how big is ये stammering, right? फिर वो मेरे से बोलता है कि राहुल आज से 20 साल ये पहले I also used to stammer. Really, just like you do. Just like you do, I also used to stammer. So how he fixed? That I don't know right now. But फिर वो मेरे से एक ऐसी बात बोले जो मैं पिछले कुछ 2 महीने से डेली में ये खुद को बोलता हूँ। वो वैसे बोलते हैं कि राहुल, पीपल जज यू बाय योर ये कैरेक्टर, नॉट बाय योर स्पीच। ये लाइन जब उन्होंने बोली ना मेरे से, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मतलब मेरे को गूज़बम्प्स ये आ गए थे। मैंने कहा यार ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं था। मेरी बस हमेशा से यही वो थी ये चिंता कि मैं बस ये अब बोल लूँ, वर्ड बस आ जाए, बाहर आ जाए बस। लेकिन जो खुद का जो कैरेक्टर जिसपे आई शुड फोकस, वो तो मैं ये भूला ही हुआ था। तो बस इतना ही था कि मैं भी एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। Sure. मेरे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो भी सिर्फ खतराते हैं। अभी तो बहुत कम वो खतराते हैं, क्योंकि मेरे वो डिपार्टमेंट हेड हैं। और उसके बाद